ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے سکھلایا اور الہام کیا، بصیرت بخشی اور سمجھایا، اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کی، اور اس نے جو بھرپور نوازش کی اور انعام کیا اس پر اس کا شکر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسے شخص کی گواہی جس نے اس پر ایمان رکھا اور اس کے آگے خود سپردگی اختیار کی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، چنیدہ نبی اور معزز ترین پسندیدہ رسول ہیں. درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، قوموں کے سردار آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور جس نے ان کی درست طریقے سے پیروی کی ان پر، اور سلامتی ہو. اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں. اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان کے قریب رہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، ان سے گفتگو کریں جو آپ کا احترام کرتے ہوں، ان سے مشورہ کریں جو آپ سے محبت کرتے ہوں، عقل مندوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، دلوں کو جوڑیں، جذبات کا لحاظ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں سے اچھی باتیں کہیں. دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، عنقریب آپ رخصت ہوں گے اور صرف نام و نشان باقی رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. مسلمانوں، پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی، ایمان سے اسے مزین و منور کیا، عقل سے عزت بخشی اور اسے ہدایت دی اور بصیرت عطا کی. عقل ہی مکلف بنائے جانے کا محور ہے، اس کے نہ ہونے سے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں. عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل آدمی کو شہوتوں میں پڑنے اور مکروہ اور مضر چیزوں کے کرنے سے روکتی ہے. اللہ کے بندو، عقل انسان کے انسانیت کی بنیاد، اس کی فطرت کو سیدھا رکھنے والی اور اس کے مکلف ہونے کا محور ہے. اسی سے انسان سوچتا ہے، ادراک کرتا ہے. شریعت کا خطاب اور احکام عقل سے ہی منسلک ہیں، اور جس کی عقل زائل ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر عقل خریدی جا سکتی تو لوگ اس کی قیمت ایک دوسرے سے بڑھ کر دیتے. تعجب ہے اس پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کے عقل کو بگاڑتی ہے. مسلمانوں، اگر بات ایسی ہی ہے تو منشیات ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کے مقاصد کے ستونوں کو ڈھاتی ہے، اس کی عمارت کو ہلاتی ہے اور اس کے ڈھانچے کو پارا پارا کرتی ہے. اور اس میں سبھی منشیات اور نشہ آور اشیاء شامل ہیں جنہیں پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ناک سے اندر لیا جاتا ہے یا جن کا انجیکشن لیا جاتا ہے، چاہے وہ سائل مادہ ہوں یا جامد گولی ہوں یا سفوف یا گیس. دارقطنی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا، اسے اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے. تو ہر پینے والی چیز جس کا انجام شراب کے انجام کی مانند ہو وہ شراب کی مانند حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپے اور اسے چھپائے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے. پتہ چلا کہ منشیات کی تمام قسمیں شراب کے اندر اس کی دلالت میں شامل ہیں. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. اور متفق علیہ حدیث ہے، ہر شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے. اسی وجہ سے فقہاء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منشیات اور ان کی کھیتی، ان کا بنانا اور انہیں استعمال کرنا سب حرام ہیں، چہ جائے کہ ان کی اسمگلنگ اور فروغ اللہ کی پناہ. بلکہ ابن عابد رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں فرمایا، جس نے حشیش کو حلال کہا وہ زندیق بدعتی ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ یعنی حشیش شراب سے بھی زیادہ خبیث ہے، اس حیثیت سے کہ یہ عقل اور مزاج کو بگاڑتا ہے. مسلمانوں، منشیات کی دنیا تاریک دنیا ہے، اس کے اندر داخل ہونے والا گم ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے والا دوبارہ جنم لینے والا ہوتا ہے. منشیات برائی کی جڑ، نقصان کا مرکز، بگاڑ کا مخزن، مصائب کی جگہ اور برائی کی کمین گاہ ہے. منشیات ہر بلا ان سے چھوٹی ہے، یہ وقت کی آفت اور زمانے کی مصیبت ہیں. یہ پیٹھ کو توڑنے والی، عقل کو ختم کرنے والی اور جانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں. یہ ہر بلا کی جڑ، ہر برائی کی بنیاد، ہر شر کی کنجی اور گندا شیطانی عمل ہے. یہ عداوت و دشمنی میں ڈالتی ہیں، اللہ کے ذکر، نماز اور دین و دنیا کے ہر نیک عمل سے روکتی ہیں. یہ حیا کو پارا پارا کرتی، غیرت کو بجھاتی اور مروت کو ختم کرتی ہیں. یہ سست رفتار خودکشی ہیں، ان سے انسانیت کو صرف برائی، فحاشی اور عداوت ملتی ہے. ان سے کتنی عمریں کم ہوئی ہیں، کتنے مال ضائع ہوئے ہیں، کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے خاندان اجڑے ہیں، کتنی آرزویں گم ہوئی ہیں اور کتنے خواب ضائع ہوئے ہیں. ان سے کتنی آبرو ریزی، خودکشی، چوری، ڈکیتی، رشوت اور سرکشی وقوع پذیر ہوئی ہیں. بھائیوں، گھروں میں کتنی غم آگی خبریں ہیں.
सीनों में कितने छुपे हुए राज हैं। ये देखिए, ये उनफुआने शबाब में कदम रखने वाला जवान है, अपने रब का फरमा बरदार है, वालिदैन का सपूत है, रास्त अखलाक का मालिक है, पढ़ाई लिखाई में फायक है, उम्मीद और मंसूबा से भरी अच्छी जिंदगी जी रहा है कि यकायक किसी सुबह शाम के दरमियान बुरे साथियों और गुनाहों के दोस्तों के जाल में फंस जाता है, जो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं, धोखा देने वाले, वहम में मुब्तला करने वाले हैं, और यूं उसके अंजाम का आगाज हो जाता है। खूबसूरत जिंदगी परछाई में बदल जाती है, चराग की रोशनी बुझ जाती है, ताअत फिस्को फुजूर, फरमाबरदारी नाफरमानी और अखलाक तमर्रुद सरकशी में बदल जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये मिस्कीन दोशीज़ा है, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक, परिवार और अहले खाना की उम्मीद, सूरत और सीरत में खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती है। हासिद औरतें उससे करीब हुई, गुमराह और गुमराह करने वाली औरतों ने उसे अपने घेरे में लिया और ये गरीब उनके जाल में फंस गई। हर धोखाबाज झूठे के हाथ में खिलौना बन गई। उसका मिस्कीन वली नहीं जानता कि उसे जिल्लत के साथ लिए हुए ही रहे या मिट्टी में दबा दे। और एक दूसरी शक्ल है जो इससे भी सख्त और तकलीफ दे है। ये खुशो खुर्रम परिवार का गार्जियन है। माँ और बच्चे फरहत और बशाशत के साथ अपने बाप का इस्तेकबाल करते हैं कि वो अपने काम से लौटा है। वो उसकी गर्म गोद में जा पड़ते हैं, उसके मोहब्बत भरे साये तले महफूज हो जाते हैं कि यकायक किसी सुबह शाम के दरमियान वो फाड़ खाने वाला जानवर और काट खाने वाला वहशी दरिंदा बन जाता है। उनके पास उस चेहरे के साथ आता है जिस चेहरे के साथ गया नहीं था। घर में खौफ का बसेरा हो जाता है, तारीकी आंगन में फैल जाती है, बच्चे खौफ में जीते हैं। खूबसूरत जिंदगी बदमजगी, बदबख्ती और तारीकी में बदल जाती है। ये उन मोहलिक मुनशियात की बात सूरतें और अहवाल हैं, ऐसी शक्लें हैं कि जिनके हौल से पहाड़ गिर जाएं। मुसलमानों, इन गलावतों में मुलव्वस आदमी न दुरुस्त फिक्र का मालिक होता है और न हुस्ने इख्तियार पर उसे कुदरत हासिल होती है। मौत के सौदागरों के हाथ मुंह एक खिलौना होता है जो कुर्बान होने वालों के खून से रंगीन और उनमें लटपट माल कमाते हैं। ये मुलव्वस आदमी अपनी जान, पढ़ाई, नौकरी, माल, नेकनामी, सेहत और परिवार सबसे हाथ धो बैठता है। अलहदगी, बेकारी, सुस्ती, उलझन और बेचैनी की जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी गुमनामी, सरकशी, उकताहट, खौफ, हौल और बेहिम्मती से इबारत होती है। बदनी नफ्सियाती, समाजी, माशी और माहौलियाती नुकसानात लाहिक होते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों, इन तमाम के बावजूद इसमें मुलव्वस आदमी बीमार है जिसका इलाज जरूरी है, न कि ऐसा मुजरिम जिसे सजा देना जरूरी हो। भाइयों, इलाज के अहम तरीन जराए में से दीन और अखलाकी अक़दार को मजबूत थामना, अल्लाह के हुक्म पर इस्तेकामत बरतना, उसकी शरीयत की पाबंदी करना, अल्लाह के फर्ज करदा अहकाम को अदा करना, उसके हराम करदा अशिया से बचना है। और जब दीनी जज्बा कमजोर पड़ जाए तो मुनहरिफ अफकार और फासिद अक़दार का कबूल करना आसान हो जाता है। मुसलमानों, इंशाअल्लाह खानदान बच्चों की सही तरबियत से समाजी आफतों से बचाव है जिनसे उनके बच्चे अपनी जिंदगी में घर के बाहर नमुर्दाजमा होंगे। अल्लाह की मदद से खानदान ही इस खतरे को दफा करता है जो उनके बच्चों की जिंदगी को लाहिक होते हैं। खानदान के गार्जियन के लिए जरूरी है कि वो बेदार हो, नजर रखे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी औलाद की निगरानी में चुस्त हो, अपने बच्चों के साथ उनकी निगहबानी के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनकी परेशानियों और हर वो चीज जो उन्हें फिक्रमंद करती है उनका सामना करने के लिए काफी वक्त लगाए। जहाँ तक हो सके बच्चों के बीच मोहब्बत और एहतराम को फरोग देना और तशद्दुद और जिस्मानी ईज़ा से बचना जरूरी है। तशद्दुद और सख्ती और घर के बाहर रात गुजारने से गुरेज जरूरी है। उनके दोस्तों, हम नशीनों और साथियों पर नजर रखना जरूरी है और बुरे साथियों से उन्हें बचाना जरूरी है कि बुरा साथी ही बीमारी का घर है। मुसलमानों, इसी तरह खानदान की मदद, माशी और समाजी हालात को हमवार करने में उसके साथ खड़ा होना और उसकी मईशत को बेहतर करना जरूरी है ताकि दुरुस्त अखलाकी बुनियादों पर उसकी तरबियत हो सके, करीमाना जिंदगी मुहैया हो सके और वो बच्चे अल्लाह के हुक्म से इन मुहलिक बीमारियों में पड़ने से बच सकें। भाइयों, इलाज और बेदारी में हिस्सेदारी निभाना तमाम की जिम्मेदारी है। मखसूस इदारों का अपना किरदार और जिम्मेदारी है। अल्लाह उनकी मदद करे और उन्हें दुरुस्त करे। स्कूल और मस्जिदों में अहले इल्म, असहाबे कलम, राय, हुकूक, मईशत, सेहत और वर्जिश, तहजीब की महफिलें, हर किस्म की पेशावराना जमीयतें, चाहे वो मर्दाना हो या जनाना, ज़राए इब्लाग और तहजीब के इदारे, सोशल मीडिया, रिफाही इदारे, अपने दीन, मुल्क और परिवार से मोहब्बत करने वाला हर गयूर फर्द, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी करें, इत्तला दें और इलाज करें। इसी तरह माशी और समाजी परेशानियों के हल की फिक्र, अमल करने के मौके मुहैया करना और बेकारी व बेरोजगारी के मसले पर गौर करना भी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पासे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम है। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से
तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे, सो अब भी बाज आ जाओ। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह अज़ीम से अपने लिए, आपके लिए और बटे तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए और उसकी जनाब में तौबा कीजिए। बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। उसकी रहमत गुनाहगारों के गुनाहों को वसी है। उसकी नेमतों को गिनने से गिनने वाले आजिज हैं। उसकी बुर्दबारी अजीम है, इसलिए उसने पर्दा रखा। उसने बख्शिशें की तो खूब नवाजा और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। तौबा से बड़े गुनाहों को बख्शा और नदामत से दिनों की लग़ज़िशें मिटाई। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल मखलूक़ात के सरदार हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी मुअज़्ज़ज़ सरदार आल पर, निशाने राह सहाबा पर, ताबईन पर, और जो क़यामत दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें उन पर, और सदा बहुत ज्यादा मजीद सलामती हो। अम्मा बाद मुसलमानों, मुआशरे को इन आफतों के खिलाफ जंग पर आमादा करना और इनके खतरात से लोगों को डराना तमाम की जिम्मेदारी है। जो आदादो शुमार बयान किए जा रहे हैं वो खौफनाक हैं। स्मगलिंग और फरोख्त के रास्तों के खौफ से बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी है। फर्द, खानदान, मुआशरा और मुल्क की जिम्मेदारी अजीम है। लोगों, जिम्मेदार इदारों के साथ सब मिलकर मुकम्मल ताउन कीजिए, क्योंकि फायदा सबका है और नुकसान भी सबका है। हमारा मुल्क सिक्योरिटी, समाज और सेहत की तमाम सतहों पर इस आफत के खिलाफ वसी जबरदस्त जंग लड़ रहा है, जिसका मकसद ये है कि समाज के तमाम अनासिर को इसमें शरीक किया जाए। मुल्क पूरी संजीदगी और मेहनत से काम कर रहा है और इस तबाहकुन आफत के खतरात के खिलाफ बचाव, तरबियत और बेदारी पर मुश्तमिल इक़दाम कर रहा है। इसी तरह इसमें मुब्तला लोगों और उनके खानदान को नफ्सियाती और समाजी मदद दे रहा है। इस आफत के मुकाबले में सिक्योरिटी के हमारे जवान की सलाहियतें और मुनशियात के मुकाबला के नादिर आलात और दूसरे मखसूस इदारों के साथियों के साथ उनकी जबरदस्त कोशिशें हर किस्म और हर शक्ल की मुनशियात के स्मगलर्स और उनके फरोग देने वालों के रास्ते को नाकाम करके बड़ी हुसूलियाबियां रिकॉर्ड कर रही हैं और बड़े बहादुराना कारनामे रकम कर रही हैं। इन बाबरकत इदारों की, इनकी क़यादतों और अफराद के साथ मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में हैरत अंगेज अदादो शुमार हैं, जो चौतरफा हैं, जिनकी सरहदें खुश्की, बहरी और हवाई सतह पर खुली हुई हैं। इन बातों के बाद अल्लाह आप पर रहम करे। मुनशियात का मुकाबला पूरे मुआशरे का मसला है। ये अवामी सफाई की जंग है, इसलिए इस दुश्मन के खिलाफ मुल्क के तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जरूरी है। ये बातें नहीं और दूधो सलाम भेजो, हदिया की हुई रहमत और तोहफा दी गई नेमत तुम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कि उसका हुक्म तुम्हें तुम्हारे रब ने अपने मुहकम तंजील में दिया है। उसने करीमाना बात कही है और अपनी वो बात में सच्चा है। अल्लाह ताला उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद और सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा नबी मुश्तबा पर, आपकी तैयब ताहिर आल पर, मोमिनों की माएं उनकी बीवियों पर, और अल्लाह तू राजी हो जा उनके चारों हिदायत याफ्ता खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और तमाम सहाबा से, ताबईन से और ता क़यामत जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें उनसे, और अपने अफ़्व करम और एहसानो सखावत से हमसे भी। ऐ अकरमुल मुकरिमीन, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर। शिर्क और मुशरिकीन को रुस्वा कर। सरकशों, मुल्हिदों और बकिया दीनों मिल्लत के तमाम दुश्मनों को नाकाम नामुराद कर। ऐ अल्लाह हमें अपने वतनों में अमन से नवाज। हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फरमा और हमारी सरबराही उन्हें बख्श जो तुझसे खौफ खाएं, तेरा तकवा इख्तियार करें और तेरी खुशनुदी की पैरवी करें। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हमारे सरबराह और हुक्मरान को अपनी तौफीक से तौफीक याब कर। तू अपनी इताअत से उन्हें मुअज़्ज़ज़ कर, उनके जरिए अपने कलमा को बुलंद कर, उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के लिए बाइस नुसरत बना, उन्हें उनके वली अहद और उनके अख़वान व आवन को उसकी तौफीक दे जो तेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, और उन्हें भलाई और तकवा की राह पर चला। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हुक्मरानों को अपनी किताब और अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे, उन्हें अपने मोमिन बंदों के लिए रहमत बना और हक व हिदायत पर उन्हें मुत्तहिद कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा को काबिज़ों और गासिबों से आजाद कर। ऐ अल्लाह उस घर की शान बुलंद कर, उसका मकाम ऊंचा कर, उसकी इमारत मजबूत कर, उसके सुतूनों को साबित कर। ऐ दुआओं के सुनने वाले, ऐ अल्लाह सरहदों पर तैनात हमारे सिपाहियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनकी राय दुरुस्त कर, उनके निशाने सही कर, उनकी कमर कस दे, उनके आज़ाए मजबूत कर, उनके पांव जमा दे, उनको दिलजमी अता कर, उन पर सरकशी करने वालों पर उनकी मदद कर। अल्लाह तू अपनी खास ताईद से उनकी ताईद कर, अपनी रुस्सत से उनकी मदद कर, उनके आगे और पीछे से, उनके दाएं और बाएं से और उनके ऊपर से उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं कि वो अपने नीचे से कत्ल किए जाएं। अल्लाह उनके शहीदों पर रहम कर, उनके जख्मियों को शिफा दे। अल्लाह उनके अहल अयाल और ज़ुर्रियत की हिफाजत फरमा। अल्लाह तू ही दुआ का सुनने वाला है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।